Hello viewers, in this video we will see advantages and disadvantages or merits and demerits of partnership form of business. In previous video I discussed comparison between partnership and HUF, and in that particular video indirectly while comparing partnership with Hindu undivided family business we saw meaning and characteristics of partnership also. So I have not prepared separate video of meaning and characteristics of partnership. It is already included in that video of comparison between partnership and HUF. So now let's begin with advantages of partnership, merits of partnership form of business. Number one, easy to form and establish. Partnership form of business, friends, is a form of business for which establishment of partnership or starting of partnership or commencing a partnership, we need not go through a long legal procedures as required in a company case. तो पार्टनरशिप को स्टार्ट करना, कमेंस करना, एस्टैब्लिश करना comparatively easy है, just like sole proprietorship. Okay, only requirement is agreement among partners, oral or written. Okay, number two, second advantage of partnership form of business is efficient management, effective management. Compared to sole proprietorship, efficiency level of management or operations of partnership will rise or increase because here talent and skill of two or more persons, more partners is utilized. We can do division of work and specialization of work as per the talent of a partner in partnership form. So obviously the efficiency level, management level, operational skills and level will increase in partnership. That is one more advantage. Number third, more resources and capital compared to sole proprietorship. In partnership, we can avail, we can arrange, we can collect more resources, more time, more money, more finance, right? More efforts, more skills. Everything is more compared to sole proprietorship. In sole proprietorship, one and only owner is there. In partnership, two or more are there. So obviously, it makes a difference. Number four, increase in credit or prestige or goodwill of business. Obviously, in sole proprietorship, it is the one person, one owner who builds goodwill and prestige and credit to the business. Here, it is a joint effort of two or more partners in building goodwill, credit and prestige of business. So obviously it will also enhance compared to sole proprietorship. Number five, proper decision making. In individual proprietorship, what happens? Only one person takes decision because there is only one owner. लेकिन partnership में क्या होता है? कि partnership में all partners mutually and jointly with agreement take decisions. तो obviously जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग मैच्योरिटी है, डिसीजन मेकिंग में जो रैशनैलिटी है वो बढ़ जाएगी. सोचे समझे डिसीजंस, मैच्योर्ड डिसीजंस पार्टनरशिप में लिए जा सकते हैं क्योंकि सबका ओपिनियन और जो है विजडम मिलती है डिसीजन मेकिंग में. नंबर सिक्स, शेयरिंग ऑफ रिस्क. पार्टनरशिप में क्योंकि दो या दो से ज्यादा लोग मिलके उसे ओन करते हैं और चलाते हैं तो जाहिर है कि रिस्क जो है, फाइनेंशियल रिस्क डिवाइड हो जाएगा, प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एडवांटेज में हम जहां तक रिस्क का सवाल है वो डिवाइड हो जाएगा. यानी अगर लॉस जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तमाम लॉस एक ही इंसान के शोल्डर पर आएगी, कंधों पर आएगी, माथे पे आएगी. यहाँ ये डिवाइड हो जाएगी. नंबर सेवन, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंजेबिलिटी. जरूरत के मुताबिक पार्टनरशिप में भी हम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप की तरह चेंजेस ला सकते हैं. कोई आउटसाइडर को हमें पूछना नहीं है. हाँ, पार्टनरों में एग्रीमेंट हो जाना चाहिए
कंसेंट हो जानी चाहिए, तो हम कोई भी चेंज पार्टनरशिप में ला सकते हैं, जब लाना चाहे, जैसा लाना चाहे। इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। नंबर 8, पर्सनल कॉन्टेक्ट विथ ऑल कंसर्न पार्टीज एंड मोर इंपॉर्टेंटली विथ कस्टमर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स कैन बी मेंटेन। और पर्सनल कॉन्टेक्ट मेंटेन करने का एक स्पेशल अपना एडवांटेज होता है। यू कैन इंप्रेस विथ योर स्किल्स कस्टमर्स, यू कैन सेटिस्फाई देम, यू कैन कन्विंस देम, पर्सनल कॉन्टेक्ट अगर होता हो तो। एंड नंबर 9, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। पार्टनरशिप का एक और एडवांटेज ये है कि इसमें जो इकोनॉमिक और डिसीजन मेकिंग पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, मतलब कोई एक ही इंसान के पास नहीं आ जाता। यानी इन अदर वर्ड्स मैनेजमेंट इज डेमोक्रेटिक नॉट ऑटोक्रेटिक। सब पार्टनर मिलजुल के पार्टनरशिप को चलाते हैं, डिसीजंस लेते हैं और डेमोक्रेटिकली उसको चलाया जाता है, ऑटोक्रेटिकली मनमाने ढंग से नहीं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। जब हम पार्टनरशिप चलाएंगे तो इतने सारे एडवांटेजेस हम गेन कर सकते हैं। When there are advantages, obviously friends, there are disadvantages also. तो demerits, disadvantages या limitations अगर आप हम कहें तो उसमें हमने हाईलाइट कर रखी है। नंबर 1, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहली लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ये है कि लायबिलिटी इज अनलिमिटेड जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स इफ बिजनेस प्रॉपर्टीज आर इनसफिशिएंट टू पे बिजनेस डेट्स, यानी कि अगर बिजनेस में डेट बढ़ जाए प्रॉपर्टियों के मुकाबले हैवी लॉस जाने से, तो ओनरों को यानी कि पार्टनरों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टियां बेच के भी बिजनेस डेट चुकाना पड़ेगा। तो इसको हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं और ये एक डिसएडवांटेज है। नंबर 2, लिमिटेड कैपिटल। सर अभी तो आप कह रहे थे मोर रिसोर्सेस और मोर कैपिटल, ये क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया? नो, ये अपनी जगह पे यहां सही है। यहां जब हम कहते हैं मोर कैपिटल कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, यहां जब हम कहते हैं लिमिटेड और लेस कैपिटल कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कोऑपरेटिव बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ अगर हम पार्टनरशिप को कंपेयर करें तो रिसोर्सेस और कैपिटल जो है एक रिस्ट्रेंट आ जाती है, एक लिमिट आ जाती है। उससे उसके ऊपर ये तुम बिजनेस का साइज, वॉल्यूम, स्केल बढ़ा नहीं सकते पार्टनरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप से बढ़ा सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम यहां कहेंगे लिमिटेड रिसोर्सेस एंड लिमिटेड कैपिटल। नंबर 3, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड डिसएग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ये है, लिमिटेशन ये है कि हम जब पार्टनरशिप चलाते हैं तो पार्टनर्स में म्यूचुअल हर एक का अपना नेचर होता है, लाइकिंग होती है, प्रेफरेंस होती है, चॉइस होती है हर एक पार्टनर की। Whenever they operate partnership jointly, whenever they run partnership jointly, take decisions jointly, there can be distrust or disagreement among them, among partners. अगर पार्टनरों में मनमुटाव हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, अंदर टसल हो गई, झगड़े हो गए, तो then it can cause serious problems in managing, in running and continuing partnership. ठीक है। नंबर 4, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजंस। हम कहते हैं क्वालिटी डिसीजंस होंगे, मैच्योर डिसीजंस होंगे, लेकिन डिसीजन लेने में डिले हो सकती है क्योंकि अनलेस ऑल पार्टनर्स अवेलेबल इन टेकिंग डिसीजन, नंबर 1, एंड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री, वी कैन नॉट टेक डिसीजन इन पार्टनरशिप लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही ओनर है, उन्हें ही अपना डिसीजन ले लेना है, किसी को पूछना नहीं है। यहां सब पार्टनरों को पूछना पड़ेगा, सब पार्टनरों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। एक भी पार्टनर डिसएग्री होगा तो डिसीजन लिंगर हो जाएगा, लटक जाएगा, लिया नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट, नंबर 5, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी। बिजनेस सीक्रेट्स सोल प्रोप्राइटरशिप में एक्सक्लूसिवली मेंटेन होते हैं बिकॉज ओनली वन ओनर नोज द बिजनेस सीक्रेट्स। यहां ऑल पार्टनर्स नो बिजनेस सीक्रेट्स। सपोज देयर आर 7 पार्टनर्स, 8 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो बिजनेस के सीक्रेट 7 लोग जानते हैं, 8 लोग जानते हैं। कोई भी अगर किसी को लीक करता है, किसी को शेयर करता है, बता देता है, तो बिजनेस सीक्रेट्स विल गेट लीक्ड, कैन नॉट बी मेंटेन। सो इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर और ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स
एक्चुअली कंपनी में जैसे शेयर आते हैं वैसे पार्टनरशिप में शेयर्स नहीं आते, लेकिन इंडिविजुअल पार्टनर कैन नॉट सेल हिज शेयर टू एनीबडी एल्स विदाउट द कंसेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। जैसे ए बी सी, अतुल, बकुल एंड चेतन नाम के 3 पार्टनर्स मिलकर एक पार्टनरशिप चला रहे हैं। अब चेतन को ऐसा आइडिया आया है, चेतन यूं डिसाइड कर रहा है कि मैं ये पार्टनरशिप से निकल जाता हूं और मेरी जगह दिनेश को रख देता हूं। नॉट अलाउड, नॉट पॉसिबल। अपना शेयर किसी को बेच देना पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं है, एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स ए काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन and considered limitation of partnership. Next, delay in decision making. Right, ये actually similar हो गया है. Point number 4 and point number 7, lack of prompt decision and delay in decision making are same, so we omit it here in the explanation. Number 8, like that it will be number 7 if you omit number 7. Then it will be number 7. Number 7, short lifespan. Short lifespan means in a partnership, due to few reasons, partnerships do not last very long. Partnership में बहुत लंबी नहीं चलती। HUF जैसी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जैसी कंपनियां जैसे लॉन्ग पीरियड के लिए चलती है, सेंचुरीज तक चल सकती है, ऐसे पार्टनरशिप में नहीं चलती। क्योंकि नंबर 1, इन पार्टनरशिप व्हाट हैपेंस, पार्टनर्स पर्सनल मैटर्स और प्रॉब्लम्स हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन कंटिन्यूटी ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरों के पर्सनल प्रॉब्लम की इफेक्ट पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी पर रहती है। नंबर 1, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वन पार्टनर डाइज, कोई एक पार्टनर मर गया है, तो अब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा पार्टनरशिप के चलने पर। कोई एक पार्टनर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया है, उसने विड्रॉ कर लिया पार्टनरशिप से अपने को, तो अब अगेन देयर विल बी क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट पार्टनरशिप। कोई पार्टनर सीरियसली इल हो गया, क्रोनिक इलनेस में फंस गया, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, किडनी एलिमेंट, हार्ट एलिमेंट, ऐसी कोई बीमारी आ गई कोई पार्टनर को या कुछ पार्टनरों को, तो देयर विल बी क्वेश्चन मार्क ऑन पार्टनरशिप कंटिन्यूटी। एंड सेकंड, एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ short lifespan of a partnership is that mutual distrust, mutual disagreement, conflict among partners will shorten the life of partnership. जैसे ही पार्टनरों में मनमुटाव होगा, झगड़े होंगे, टसल होगी, डिसएग्रीमेंट होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, they all will think of sooner or later closing the partnership or winding up the partnership. क्योंकि अब जब हेल्थी और म्यूचुअल और कॉर्डियल रिलेशनशिप ना हो पार्टनरों में, तो पार्टनरशिप चलेगी कैसे? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू पार्टनरशिप इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ड्यू टू सच रीजंस partnerships do not last long. So that also is one of the important limitation, disadvantage or drawback of partnership. So these are the main advantages and disadvantages